کی بات نہیں ہو رہی، پوری کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، پوری کلیسیا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی کلیسیا ہے تمہیں اب موئسچر ہونا پڑے گا، اب تمہیں چناؤ کرنا پڑے گا کہ اگر میں جیزس کی بیٹی ہوں، اگر میں جیزس کا فالوور ہوں یا جیزس کا بیٹا ہوں، تو پھر مجھے پترس کی طرح اس جواب کو جو ٹھیک ہے مجھے جب دوں گا تو پھر وہ مجھ پر کلیسیا قائم کرے گا۔ اور میری کلیسیا کون؟ لازمی یہ ہے کہ میں جیزس کا ٹھیک طریقے سے فالوور ہوں، اور جب میں صحیح سے فالوور بنوں گا وہ مجھ پر کلیسیا کون سی؟ میرے گھر کی کلیسیا مجھ پر قائم کرے گا۔ اگر ابراہیم اپنی وفاداری کا ثبوت نہ دیتا، اپنے بیٹے کو قربان نہ کرتا، تو پھر وہ کبھی بھی ایمانداروں کا باپ نہ بنتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کبھی بھی ایمانداروں کا باپ نہ بنتا، جس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سن ابراہیم، میں تیری نسل کو ریت کے ذروں کی طرح بڑھاؤں گا۔ ریت کے ذرے، ستارے تو پھر تم کچھ گن سکتے ہو، لیکن ریت کے ذرے تو وہ کبھی سوچ کے بھی نہیں آپ گن سکتے۔ اب ایک دو میں ہی بھول جاؤ گے، صرف ایک دو ذرے الگ کر کے بھول جاؤ گے، لیکن آسمان کے ستارے تو شاید آپ گن سکتے۔ آج کل تو دھوئیں، اسموک کی وجہ سے، موٹر سائیکل اور ٹریفک کی وجہ سے آج کل تو ویسے ستارے چھپ گئے، نظر آنا ہی بند ہو گئے۔ اگر تم بیسٹ کلیسیا اور بیسٹ چرچ کے ممبر بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو موئسچر رکھو اور اپنے آپ کو اسی کا ممبر بناؤ جہاں سے تمہیں بلیسنگ ملے۔ ہر جگہ چرچ بنتے جا رہے ہیں، کلیسیاں بنتی جا رہی ہیں، لیکن نمی کہاں پر ہے؟ تری کہاں پر ہے؟ تر کہاں پر ہے؟ موئسچر کہاں پر ہے؟ ذرا چیک تو کرو۔ اور جہاں پر تمہیں بلیسنگ ملے، یاد رکھنا ہرڈنس بھی وہیں پہ آئیں گے، پرابلمز بھی وہاں پر تم اتنی فیس کر سکو گے، لیکن ان دا بگننگ سلولی جب تمہارے لیے بہت ساری نبوتیں ہوں گی، پروفیسی ہوں گی، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن کہاں کیا کرنا؟ اڑے اور کھڑے رہنا۔ اور جب اڑے اور کھڑے رہو گے، یاد رکھنا پھر تم موئسچر بھی رہو گے، تم ایسے تر بنو گے کہ جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہیں خدا کیسا موئسچر کرے۔ تم اتنا وہ تمہیں موئسچر کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں جاتی وہاں پر، جہاں تک وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں تھوڑی کہتا ہوں۔ اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے عقاب کتنی اونچائی تک اڑتا ہے؟ وہ اتنی اونچائی پہ چلا جاتا ہے کہ انسانی آنکھ بھی اسے دیکھنا بند ہو جاتی ہے۔ عقاب اتنا اڑتا ہے، اتنی اونچائی پہ چلا جاتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے داؤد؟ عقاباں دے وانگر مینوں زور دے کے، بغیر زور کے، دیکھو بغیر زور کے کیسے اڑ سکتا ہے وہ؟ اگر اس کے پروں میں زور ہی نہیں ہے تو وہ اڑ سکتا ہے کیا؟ بولو تو صحیح، وہ اڑ سکتا ہے بغیر زور کے۔ پہلوان اگر کھاڑے میں جائے اور میری طرح کا پتلو سا ہو تو پھر آگے سے کوئی تگڑا بندہ مل جائے گا تو وہ تو پھر مجھے چھوڑے گا نہیں، میرا بازو توڑے گا سب سے پہلے۔ تو کہتے ہیں انہوں تو پھڑو پہلے۔ ہمیں جانے کے لیے، کھاڑے میں جانے کے لیے پہلے وہ پوری تیاری کرنی پڑے گی جو کھاڑے کے رولز ہیں۔ ریسلنگ فرق ہے، کھاڑا فرق ہے، کشتی فرق ہے، ہر چیز فرق ہے۔ آپ کو وہی تیاری کرنی پڑے گی جس تیاری کے لیے تم جا رہے ہو۔ اگر تم جیزس سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہو اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال، کہتے ہیں ہوا سے اڑے جا، کیسے اڑنا ہے؟ اس کو اڑنے، اپنے آپ کو اڑانے کے لیے، اب کلیسیا کی باتیں کر رہا ہوں میں، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، یہ سب سے ایک مشترکہ بات کر رہا ہوں۔ کیا کہتی کلیسیا؟ ہوا سے اڑ جانا ہے، یسوع نے جدوں آنا ہے۔ یسوع تو روز آتا ہے، تم کہاں ہو؟ یسوع تو ابھی بھی آیا کہ نہیں؟ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ چھریاں نہیں ہونی چاہیے منہ میں۔ ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، آل اوور، سب کی۔ اور اگر تمہارے چہرے پر چھریاں اور پریشانیاں، ذہنی ٹینشنیں، اور جی کیا بتاؤں میں، سب کچھ اپنے ذہن سے، مائنڈ سے نکال دو۔ اگر بیسٹ کرنا چاہتے ہو، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں تو آپ زندگی میں بھی نہیں سنو گے کسی سے۔ جب خدا نے
इंसान को बनाया था, मेरा ईमान है खुदा कभी भी पाँव से काम शुरू नहीं करता, खुदा सर से काम शुरू करता। ऐसा है कि नहीं? उसने जब इंसान को बनाया था उसने सर की तरफ से बनाना शुरू किया था, फिर पाँव बने। ऐसे बनाता 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 फिर पाँव की तरफ गया, फिर पाँव बने। अगर आपका जहां से आपने शुरू करना है काम अगर यही ठीक नहीं तो फिर थल्ले वाला धड़ क्या होगा? अगर जहन की शरियानें बंद हो जाए तो मुझे ये बताओ, दिमाग की नसें फट जाएं तो क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर डेथ होती है, सब डेथ, फारग, ये बंदा दफना दो, ये किसी काम का नहीं रहा। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आपके माइंड में सिर्फ यही बैठ गया है। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कुछ दिन पहले, एक टेस्टमनी के तौर पर। एक बेटी जो बदकार हो गई, उसकी माँ अपने स्पिरिचुअल फादर, उसकी माँ स्पिरिचुअल फादर के पास गई, बताया मेरी बेटी बदकार हो गई है, वो ये है, उसको ऐसे करती है, वो क्लब में जाती है, वो ऐसे करती। तो उसके स्पिरिचुअल फादर ने क्या कहा? क्या कहा था याद है? अपनी बेटी को यहां से सोचना शुरू करो, यहां से नहीं। तुम कलीसिया हो भाई, तुम सब कलीसिया, हम सब कलीसिया हैं। हम सब लोग, अगर हमारे चेहरे ही खराब है, हम दाग वाले लोग हैं, तो फिर कैसे उसके हुजूर पेश हो सकते हैं? बताओ मुझे। अगर हमारे चेहरे पे इतनी बेरौनकी है, टेंशनें हैं, परेशानियां, दुख है, तकलीफें हैं, तो फिर कैसे ब्लेसिंग ले सकते हो? मैं थोड़ी कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। कैसे? क्योंकि यहां से तो तुम्हारी इबादत शुरू होती है। तो अगर यही सेटिस्फाई नहीं है, अगर तुम्हारा माइंड ही सेटिस्फाई नहीं है, अगर तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, जी मुझे वो टेंशन नहीं छोड़ रही, वो चीजें मुझे सोने नहीं देती, तुम दुनिया के बड़े से बड़े खादम के पास भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी जादूगर, किसी बंदे के पास भी चले जाओ, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। मुझे चीजें सोने नहीं देती। कौन सी चीजें? एक्चुअली चीजें नहीं सोने दे रही, तुम्हारे जहन में ये लफ्ज तुम्हें सोने नहीं दे रहे। ये कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं, एक बंदे की बात नहीं कर रहा। तुम्हारी इबादत, कलीसिया की इबादत जो है वो एक तरफा। कहते हैं आए जी तालीम, सारी कलीसिया 10 तार वाले सांस बजा के, कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं 10 तार वाले सांस? क्योंकि एक कलीसिया, एक बंदा है, उसके 2 हाथ हैं। अब जब 100 लोग बैठे हैं और 100 को ज़रब दोगे, जब 2 के साथ, तो कितने हाथ हो जाएंगे? 200 हाथ। जब एक साथ ताली बजाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर रूह और सच्चाई फिर काम करना शुरू होगी। फिर रूह और सच्चाई क्या होगी? फिर काम करना शुरू होगा। अब एक बंदा गा रहा है जी, ये एक बंदे के जुम्मे लग गया, तू ही गाना, तो फिर कैसे बोलो, कैसे चेंज आएगा? और चेहरे पे झुर्रियां कैसे खत्म होंगी? ताली का मतलब है खुशी से गाना, खुशी मनाना। ताली का मतलब है खुशी से खुदा की हम्द करना। जबकि कलीसिया क्या है? मुरझाई बैठी है। एक बजा रहा है, मैनू की लोड़ है, दूसरा बजा रहे हैं ना, मुझे क्या जरूरत है? जब कहते हैं कि हवा चूट जाना है, ये सुने जो तो आना है, कब आना है? वो तो रोज आता है, वो तो हर सेकंड, हर लम्हे आता है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से बोलो तो सही। सोची पै गए आज सारे, वो ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे लिए, तो मेरी लाइफ किधर गुजरी? आज समझ आएगी लाइफ किधर गुजरी। जहां टाइम, जगह कोई नहीं है, टाइम कोई नहीं है, टाइम फ्रेम कोई नहीं है, जगह का फ्रेम कोई नहीं है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में क्या होऊंगा? मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा, उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। जहां मुझे पुकारेंगे, और पुकारने वाले फिर झूम के, यसु ने जदवाना, ऐसे नहीं ऐसे चुप करके बैठ जाओ, फिर चेहरे की झुर्रियां भी बाहर आएंगी, फिर सब कुछ, जो कुछ अंदर होगा सब कुछ बाहर आएगा। अपने आप को नम रखो, मॉइस्चर रखो और मगन होना सीखो। और मगन होने के लिए तुम्हें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों में भी कह रहा, मैं पिछली कभी बात को नहीं दोहराता। वो जी पिछली इबादत में क्या हुआ था, फला क्या हुआ था। क्योंकि तुम सामने देखो, तुमने वक्त जवानी में गुजारा, कहीं भी गुजारा, सॉरी हमने किसी का क्यों नाम, कहीं भी गुजारा हो, लेकिन दुनिया के हम शक्ल, तो जी मेरी सोच में बैठा है जी, वो आ जाता है जी, मुझे रोज तंग करता है जी, वो फला है जी, वो फला है जी। इसका मतलब है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब,
तुम्हारी सोच में खलल है, तुम खुद स्टेबल नहीं हो। तो कहते क्या हो, होली स्पिरिट मुझ में ठहर जाए। कैसे ठहरेगा बताओ, कैसे ठहरेगा? होली स्पिरिट यहाँ से काम करेगा या यहाँ से पाँव की तरफ से? ओह माय गॉड, कहना भी पाप है। वो यहाँ से काम करता है, तुम्हें यहाँ से सेटिस्फेक्शन देना शुरू करता है। जीसस, तो नाम ऐसा जब तुम्हारे लबों पे आए, चेहरे पे ऐसी खुशी फैले कि कमाल हो जाए। क्या कर लेंगे, क्या कर लेगा? कर्ज लेने वाला, हाँ देना है भाई, क्या हो जाएगा? मार देगा जान से। टेंशन लेने से क्या होगा? बदतमीजी करेगा। सच्चाई को थाम दो भाई, नहीं है कुछ दिन दो। दुआ करता हूँ, खुदा मुहैया करता है, मैं तेरे घर आऊंगा तुझे देना, अगर तेरी नीयत है। देख लेना वो तुझे मुहैया करेगा। औलाद नहीं है, दुआ करो, खुदा मुझे औलाद दे, मैं तुझे दे दूँ। लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फिर कहते हैं हम यीशु के लोग। कह के तो देखो, खुदा मुझे दे, मैं तेरे लिए करूंगा। तू मुझे दे, मैं तेरे लिए करूंगा। तू मुझे दे, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन कौन इतनी दलेरी रखेगा? ये भी नहीं, मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा हो। अगर तुम दे नहीं सकते, उसकी परवरिश तो वैसी कर सकते हो ना। पहले ले तो लो। झुर्रियों वाले बंद बनो, मॉइस्चर बनो। मॉइस्चर किससे? मसा से, कुदरत से, कलाम से, हजूरी से, नजूल से, उसके मुकाशफा के भेदों से। ऐसे तर रहो कि कोई भी चीज तुम्हें ठेस ना पहुंचा सके, कोई भी चीज तुम्हें जरर ना पहुंचा सके। कब मुसीबतें आती हैं? जब तुम्हारी तवज्जो बिगड़ती है। जब क्या होता है? तुम्हारी तवज्जो बिगड़ती है। याद रखना, ओह अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। चूल्हे पे हंडी पड़ी हो ना, चूल्हे पे कुछ भी पड़ा हो, नीचे आग जल रही हो, तो बात गर्म रहती है। चीज गर्म रहती है कि नहीं? अगर चूल्हा जल रहा हो तो अगर उतार के नीचे रख दो तो वो गर्म रहेगी? उसको उतार के नीचे रख दो, कुछ भी नहीं होगा। वेट करो और दुआ में रहो। उसको तपने मत दो। जितना तपाओगे, इब्लीस को पता है ये इसकी कमजोरी है, मैं इसी पे अटैक करूंगा। मैं अक्सर, कोई भी बंदा हो, वो किसी भी फिरके, किसी भी रिलीजियस से हो, मुझे कोई भी अगर हो यार शुगर है, मैं उसको सिंपली बोलता हूँ, खुदा के लोग हो ऐसा मत बोलो। कौन सी शुगर? शुगर सबकी बॉडी में है। जब उसका जितना जिक्र करोगे वो तुम्हारी बॉडी में बढ़ेगी। जितना तुम जिस चीज का, ये मैं सबसे ऑल ओवर कलीसिया से बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक अब चलेगा, कोई अगले कई हफ्तों तक ये चलेगा, क्योंकि मुझे बेस्ट चाहिए और आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। मैं आपके लिए रोज दुआ कर रहा हूँ। और मैं यकीन करें, मैं उन लोगों को जो आज मिस कर गए इबादत, आपको पता नहीं कि आज की इबादत कितनी ब्लेस थी, वो मिस कर गए हैं। आप लोगों के लिए आज बड़ी ब्लेसिंग उतरने वाली है। याद रखना। देखो, आपको एक टेस्टमनी सुनाते हैं, ये आपने सुनना है जरा। हमारी मिसिस भी आई है, किधर है वो? बुलाओ जरा। आपने इस टेस्टमनी को गौर से सुनना है। टेस्टमनी तो बहुत है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझाने के लिए करनी पड़ रही है। रात को कॉल आ गई है जी, लेट नाइट, पास्टर जी आपको खुशखबरी देनी। क्या हुआ? सैटरडे को प्रेयर करवाई थी, क्या हुआ? ये हुआ। अब मैं लगे, मैंने क्या कहा? वो सानू कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या सुना अभी प्रेयर में? यही कहा था ना। आपने क्या सुना? टेस्टमनी को सुनिएगा जरा। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पिछले दिनों में ना मेरी एक जॉब का ना मसला हुआ था, और जॉब का मसला भी ऐसा था, मैं जेल में भी जा रहा था और मेरी जॉब भी जा रही थी, और सारे प्रूफ जो थे ना वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे IUD में। तो मेरा कुछ गुनाह भी नहीं था, फिर भी सारे प्रूफ जो है ना मेरे ख़िलाफ़ थे। मेरे यहाँ तक कि मेरा दोस्त था ना जो, वो भी स्टेटमेंट में लिखा है कि गुलफाम ने ना ऐसा किया है। जब फिर मैंने दुआ की, मेरी मसीह ने बहुत दुआ की, एक दो सिस्टर और भी उन्होंने भी की। तो फिर मैंने पास्टर जी को कहा, तो भाई लियाज साहब के घर में खाना था, वहाँ पास्टर साहब ने मुझे गले लगाया
उसने कहा छोटी सी बात है, कुछ नहीं। और जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के ठीक 1 हफ्ते बाद मुझे मैडम ने बुलाया। उसने कहा बेटा अपने आप को मुताहत रखो, ख्याल रखो, ना तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है और ना तुम्हें कानून के हवाले किया जा रहा है। नालायक है बच्चे, इन्होंने इधर नहीं बात की ना, खुदा का प्लान होता है। तो मैं इलियास भाई के घर खाना खा रहे थे, हम खाना खाया और निकलने लगे और ये अंदर से दौड़ा आया। मुझे पूरी लोकेशन याद है, पूरी तरह हर चीज़ याद है। खिड़की की तरफ से मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे उठा और भाग के मेरी तरफ आया और मुझे कहता है, बड़ा जैसे रोने नहीं लगा, सर जी मेरी जॉब भी जानी है तो मैं जेल भी जाना है। मैंने इसको गले लगाया और मैंने इसको टेंशन नहीं ली, छड़ एहो जिहियां गल्लां होंदियां रहंदियां। इतनी बात क्या है कि तो मैं क्या, तूने मुझे अगले जुमे गवाही दे दी। और ऐसा जलाल ज़ाहिर है, मुहतात रहो। अब देखो क्या क्या कह रही, वो लफ्ज़ जो है उन पे ज़रा गौर करो। बेटे क्या रहो, अब तुम्हें तो दूसरे लोग भी कह रहे मुहतात रहो। तौबा करो, मुहतात हो जाओ ताकि आसमान खुले, ताजगी के दिन आए और तुम ताज़ा रहो और मॉइस्चर रहो। हालेलुया। एक और बात बता दूं, इस जोड़े के लिए मैं इनके घर जब पहली दफ़ा खाना खाने गया था तो मैं तो पास्टर सुल्तान थे और खुदा ने वहाँ पे मुझसे कलाम किया। आपको पता है इनके बेबी नहीं है। खुदा ने मुझे कहा इनको बता, इन्होंने मेरे खादम की जो इज्जत की है, 3 चीज़ें, 3 ही थी ना। मार्च के बाद, अगले साल मार्च के बाद 3 बिग टेस्ट मनीज इनकी लाइफ में एंटर हो गए। 3 टेस्ट मनीज बिग, मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, बस मैं तो एक मैसेंजर हूँ, मैंने मैसेंजर दे दिए। 3 बिग टेस्ट मनीज आफ्टर मार्च के बाद इन बच्चों की जिंदगियों में एंटर होने जा रही है। सिर्फ क्या करें, अड़े और खड़े रहो। इतनी देर कोई सताता है, मैंने क्या कहा, जितनी देर चूल्हे पे चीज पड़ी रहे वो क्या रहती है, बड़ी हॉट रहती है, बड़ी गर्म रहती है। जैसे ही चूल्हे से उतर जाए वो चंद लम्हों में स्लोली वो ठंडा होना चाहिए। और अगर वही चीज फ्रिज में रख दो तो वो ठंडी हो जाती है, अगर फ्रीजर में रख दो तो वो जम जाती है। हर जगह की पोजीशन चेंज है, चूल्हे पे गर्म है, फ्रिज में ठंडी है, फ्रीजर में बर्फ है, जम गई। अब तुम देखो, मैं गांव में हूं, मैं चूल्हे पे हूं, गर्म हूं, ठंडा हूं, या बर्फ की तरह जम गया हूं, फ्रीज हो गया। हमारी कलीसिया कैसी, छुरियों वाली है, दाग वाली है, कौन सी? खुदा कहाँ मुझे लेके जाना चाहता है? खुदा हमारी कलीसिया को, हमें जबकि हमें तो वो सेपरेट करना चाहता है। हम तो सेपरेट किए हुए लोग, हम कहते हैं जी हम खून खरीदे लोग हैं। किधर हैं? अगर खून खरीदे लोग हैं तो फिर कीमत तो अदा हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं बतौर कलीसिया क्या कर सकता हूं? मैंने लास्ट आपको कहा था, खुदा को इमोशनली आप मना नहीं सकते कि मैं इमोशनली होके खुदा को मना लूंगा। आपको स्पिरिचुअल होके मनाना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ बना के आपको मनाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आकर आपको मनाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। स्पिरिचुअल हो जाओ, इमोशनल होना बंद कर दो। अगर तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हारे बच्चे भी स्पिरिचुअल होंगे। समटाइम हमें ये लगता है कि ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मुसीबत ये कर्ज मेरे से नहीं उतरेगा। वो जो तुम लफ्ज बोल रहे हो वो एक्चुअली वो पीछे ही, वो ही नहीं तुम्हारा छोड़ रहे। जब तुमने यकीन कर लिया, हाँ ये चीजें मुझसे उतर गई हैं, तो उतर गई हैं, इसका मतलब है उतर गई हैं। तुम जिस चीज को पकड़ के रखोगे वो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें छोड़नी पड़ेगी उन आदत को, जो आदत तुम्हारी बुराइयां बन चुकी है। फितरत को बदलना बड़ा मुश्किल है। फितरत को बदलो, आदत बदल जाती है। आदत हम जिसके पास, हम इंग्लिश लोगों के पास बैठना शुरू कर दें, हमारा स्टाइल अंदाज भी इंग्लिश हो जाएगा।
जानवरों में बैठना शुरू कर दें, हम भी जानवर हो जाएंगे। नशेइयों में बैठना शुरू कर दें, हम भी नशेई हो जाएंगे। खुदा के लोगों के पास बैठना शुरू कर दें, हम भी खुदा के लोगों जैसे ही बातें करनी शुरू कर देंगे। क्योंकि हम कहाँ बैठते हैं? हम खुदा के लोगों के पास बैठते हैं। अगर आप जैसे होंगे, अगर ये चीजें हैं, तो फिर इसका मतलब है अगर तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकता है तुम्हारे बच्चे स्पिरिचुअल ना हो? अगर तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हारे बच्चे भी क्या होंगे? वो भी स्पिरिचुअल हो। अगर तुम दुआ करने वाले हो, तो तुम्हारे बच्चे भी क्या होंगे? दुआ करने वाले हो। अगर तुम अच्छे होकर, अगर तुम बुरे होकर और अच्छे होकर ये, लेकिन यहाँ पर जो बात यूज हो रही है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो कैसे हो सकता है तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें ना दे? अगर बुरे लोग खुदा अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों करना देगा? क्यों करना देगा? लेकिन लाओ तो सही अपने आप को, सांचे में ढालो तो सही, उस सांचे में जिसके लिए तुम चुने गए, के लिए तुम क्या हो? तुम अलग किए गए। हर वक्त ये सोचो, जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐबजोई हो, चुगली हो, या तुम्हारे सामने कोई चोरी हो रही हो, कोई ऐसी बात हो, तुम अपनी आदत बना लो, फितरत बना लो कि तुम उस चीज के लिए दुआ करो। क्या करोगे? अपनी आदत बना लो। और जब तक तुम्हारी आदत उस चीज के लिए बनी रहेगी, याद रखना खुदा तुम्हें सरफराज रखेगा। आदत बना लो। नई औलाद दी, अगर उसने अपनी आदत बना लिया है, या मेरे लिए कुछ प्लान रखा है, वो मेरा वेट कर रहा है, वो मेरा वेट कर रहा है। कौन? वो परवरदिगार। वह जब शायद उसके पास जाऊं, वो नेमतें मुझे दे दे। इधर देखो, लुक एट मी। ऐसे कहा था ना इब्राहिम को, सॉरी आइजक को, क्या कहा था? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। खुदा कहाँ है? आसमान पे। खुदा कहाँ है? बोलो जोर से, खुदा कहाँ है? आसमान पे। आसमान क्या है उसका? उसका घर है। और आसमान पे क्या थे? उसके कदमों में तारे बिछे हैं, स्टार्स बिछे हुए हैं। वो कहता देख ये सारी मेरे पास नेमतें हैं, अगर तू इनको गिन सकता है तो फिर गिन ले, गिन के दिखा अगर तेरे में हिम्मत है तो। जीसस क्राइस्ट खुदा के कदमों के पास हैं वो सारी चीजें, वो स्टार्स जिनकी बाबत खुदा आइजक से कलाम करता है, यहोवा आइजक से कलाम करता है। अगर गिन सकता है यार, गिन तो सही। मैंने तेरे बाप से वादा किया था, जमीन के जर्रे अगर गिन सकता है तो गिन ले, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और मैं तुझसे वादा करता हूं, फर्स्ट यू लुक एट मी, मेरी तरफ देख, आसमान की तरफ देख। और जब तू मेरी तरफ देखेगा तो फिर ये जो तू मेरी तरफ देखेगा, तुझे स्टार्स नजर आएंगे, स्टार्स ही स्टार्स, तारे ही तारे। अगर गिन सकता है तो गिन। ये क्या है? ये मेरी नेमतें हैं, मैं तुझे दूंगा। इतना बढ़ाऊंगा जितना आसमान पे सितारे हैं। इतनी नेमतें पड़ी हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते खुदा ने कितनी नेमतें रखी। एक लम्हे के लिए सोचो, जितने साहिबे औलाद हो, अगर तुम्हारे औलाद ना होती तो क्या होता? तुम्हारी सास तुमसे नफरत करती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नफरत करते, शायद तुम्हारा हस्बैंड भी एक दिन कह देता लो जी तेरे तो औलाद ही नहीं। लेकिन मेरा ईमान है आने वाले दिन आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे, बेस्ट। औलाद भी होगी, नेमतें भी होंगी, केवल औलाद नहीं, बहुत सारी नेमतें भी होंगी, याद रखना मेरी बात। लेकिन करना क्या है? यहाँ से फिर अब काम शुरू करो, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करो। क्योंकि तुम क्या हो? खुदा के चुने हुए। क्या हो? खुदा के चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, मॉइस्चर किए हुए लोग, तर किए हुए लोग, ताजगी में रहने वाले लोग। अगर तुम ही मुरझाए हुए हो तो कैसे हो सकता है नेमतें मिले? मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख हो, कदी ऐसा ना दिन आवे जदों में तो वो वक्त हो। कदी खुदाया ऐसा दिन ना आए तुम्हें तो की इल्तिजा। इस शायरी में क्या रिक्वेस्ट है? मैंने बड़े लाइफ में गीत सुने, पर इतना मजा मुझे किसी गीत में, हर रोज जब घर से निकलता हूँ, ये पहला गीत मेरी गाड़ी में ये लगता है, पहला गीत। उसके बाद मैं जो कुछ मर्जी सुनता गीत ही हूँ ज्यादातर। लेकिन उसके बाद क्या है? लेकिन ये गीत ऐसा है जिसने मुझे लाइफ में पहली दफा मजा दिया। उसकी शायरी
कैसी रिक्वेस्ट है, मैं पल्ला यसूदा कदी भी नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेरे तो वख होवे। एक ज़हन बना लो, माइंड सेट कर लो। अगर तुम्हारा माइंड सेट होगा, इतने खुबे हुए हैं कि उनको होश नहीं, बैठे कहाँ पे हैं? हाथ हिलाएं जरा सारे। समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है? जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को एक माइंड सेट कर लो। यहाँ से इबादत का सिलसिला शुरू होता है, सिलसिला। ये जाके ना जो बच्चे पढ़ते हैं, सिलसिले का मतलब पढ़ना, जाके सिलसिले का मतलब क्या है। आपको हर लफ्ज को पकड़ो और उसका मीनिंग ढूंढो। हर लफ्ज को पकड़ो, उसका मीनिंग ढूंढो, और जब आपको मीनिंग मिल जाए, मतलब मिल जाए, उस पे काम करना शुरू कर दो। ये मीनिंग था, इसका मतलब मुझे ऐसे ही करना चाहिए। आपको एक यहाँ से सिलसिला अब शुरू करना है। हस्बैंड अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, प्रेयर में लगे रहो। तुम अपना काम करो, वो उसे अपना काम करने दो। बच्चे नाफरमान है, छोड़ दो उसको, उसको अपना काम करने दो। हस्बैंड बहुत बुरा है, उसको छोड़ दो, उसको अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो। जितना रोगे, याद रखना, जितना रोगे इब्लीस तुम्हें उससे ज्यादा रुलाएगा। ये बात मेरी पल्ले से बांध लेना, माइंड के पल्ले से, क्योंकि तुम क्या हो, झुर्रियां वाली कलीसिया बन गए, दागों वाली कलीसिया बन गए। जितनी तुम्हें गालियां पड़ी उतनी शुक्रिया अदा करो। जितनी गालियां पड़े उतना शुक्रिया अदा करो। खुदा तेरा शुक्र, आज मुझे 10 गालियां पड़ी, आज खुदा तेरा शुक्र, आज 15 गालियां पड़ी। जितनी पड़ती जाए गालियां, दुआएं देते जाओ, दुआ करते जाओ, क्योंकि वो भी आदत से मजबूर है। तुम खुदा के लोग हो, तुम भी आदत से मजबूर हो, तुम दुआ करो। मेरे इतने दुश्मन बन गए पिछले साल में, इतने दुश्मन बन गए, मैं आपको बता नहीं सकता। पूछ ले खान साहब से, अलग अलग ले जाके, सारे ही जेल में, सब ऐसे मरे पड़े हैं, मैं आपको खुदा माफ बता नहीं सकता। मैंने सिर्फ दुआ की है, लड़ा किसी से नहीं, एक से भी नहीं लड़ा। ब्लैकमेलिंग शुरू, पैसे मांगने शुरू, मेरे लिए खिलाफ इश्तिहार लगने शुरू, मेरे साथ फाइटिंग लड़ाई करना शुरू। क्यों खान साहब? ऐसे ही है, थोड़ी सी को कम करो। लेकिन वो आदत से मजबूर थे, मैं भी आदत से मजबूर था। उनका काम था मुझे ब्लैकमेल करना, मेरा काम था दुआ करना। मैं आपको उनके हालात बताऊं ना, खुदा माफ करे क्या चल रही। अपने आप को सिर्फ खुदा में रखो। तुम्हारे ये भी टाइम आ सकता है तुम्हारे घर में तुम्हारे दुश्मन हो, और ऐसे हो कि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे फायर मार लेना चाहिए। मैं कर क्या बैठा, मैंने किया क्या है? लेकिन तुम भी आदत से मजबूर हो जाओ। मैंने प्रेयर करनी है और सिर्फ प्रेयर करनी है। कितनी देर चलेगा, कितनी देर चलेगा सिलसिला? जॉब नहीं मिली, परेशान मत हो, जॉब के लिए प्रेयर करो। इसके लिए प्रेयर मत करो कि मैं परेशान, मुझे जॉब नहीं मिल रही, इसलिए प्रेयर करो खुदा तू मेरी लाइफ में आ जा। जब तू आएगा तो वो जो सारे सितारे जिनको मैं गिन नहीं सकता, वो सारे फिर मेरे कदमों में बिछेंगे। आपको बेस्ट हस्बैंड मिलेगा, बेस्ट वाइफ मिलेगी जब तुम बेस्ट हो जाओगे। यही कहा है ना खुदा ने। हम क्या कहते हैं दुआए रुबानी में? तेरी मर्जी जैसी आसमान पे है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी कलीसिया के लिए। लफ्ज हमारे यूज होता है कि नहीं? ए हमारे बाप, हमारे यूज करते हैं कि मेरे करते हैं? हमारे बाप, ए हमारे बाप, तू जो, तेरा नाम, देखो अभी आवाज नहीं निकल रही, तेरा नाम, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी। अगली बात क्या है? मेरी लाइफ में भी हो, जबकि मर्जी तो अपनी चल रही है सारी। अब चलने दो जरा उसकी भी मर्जी। अब चला के तो देखो जरा, मेरे कहने पे चले, कुछ दिन मेरे कहने पे भी करके देखो, तजर्बा ही कर लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। मेरे कहने पे जरा आओ, हाँ जरा उसकी मर्जी पूरी होने, फिर मुझे बताइएगा। ओह, फिर कहना पास्टर जी कब तो कमाल हो रहा है, क्योंकि मैं तो उसका महबूब बन चुका हूँ और वो मेरे सोए उठने से पहले जानता है मुझे किस चीज की जरूरत है।
काम तो करने दो उसको, उसकी मर्जी तो पूरी होनी है। बेस्ट हो जाओ, तुम्हारे बच्चे बेस्ट हो जाएंगे, तुम बेस्ट हो जाओ, तुम्हारा सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा काम, तुम्हारी पॉकेट जिसमें पैसे डालते हैं वो भी बेस्ट हो जाएगी। आटे की मटकी बेस्ट, तेल की कुप्पी बेस्ट, घर में सुकून बेस्ट, शुगर जा रही है, ब्लड प्रेशर खत्म, डायबिटीज खत्म, हार्ट अटैक खत्म, घर में बीमारियां खत्म, शुगर, हर चीज नॉर्मल काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से, अब मैं यहाँ से चलूंगा, यहाँ से। कहाँ से चलूंगा? यहाँ से, माइंड से, क्योंकि यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। और जब यहाँ से शुरू होगा फिर सिलसिला शुरू होगा। और क्या होना है? दाग वाली कलीसिया नहीं, पतरस की तरह बेस्ट कलीसिया बनो। क्या कहा था? देखो, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, जीसस क्राइस्ट आज हम सबसे कहता है, हर उस कलीसिया के मेंबर से जो चुने हुए हैं उनसे कहता है, मैं भी आज तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँ, इसे चुने हुए लोग दूंगा, कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं है। मौत की रस्सियां, मौत, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, घर में बेऔलादी, नामुरादी, चुगलियां, लड़ाई झगड़े, चोरियां, नशई, घर में कुछ भी पैदा नहीं होगा। आलमे रवा की क्या हो जाएंगे? दरवाजे बंद हो जाएंगे, ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा। कितनी बड़ी बात है, तुम खुद बताओ मुझे। आसमान की कुंजियां, आसमान के खजानों की कुंजियां खुदा कहता है मैं तुझे दूंगा। तू जो कुछ जमीन पर बांधेगा फिर आसमान पे खुलेगा, जो कुछ जमीन पर खोलेगा फिर आसमान पे खुलेगा। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हिलो जुलो तो सही, इतने बुत बन के बैठ गए हो। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट हो जाओ, बस इतने बेस्ट हो जाओ कि इस्लामी कॉलोनी में, बहावलपुर में तुम सबसे डिफरेंट मसीही नजर आओ। इतने डिफरेंट नजर आओ तुम। डिफरेंट नहीं, जब भी तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने बेटा गलत बात करे उसको बाइबल से समझाओ। बच्चे, बाइबल मना करती है ऐसी चीजों से, बाइबल इन चीजों से मना करती है। प्रेयर करो, चलो फ्री हो गए, बातें करनी फजूल शुरू कर दी, चलो छोड़ो, जाओ प्रेयर करो। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 10 दफा, 50 दफा बोलो, जितनी दफा बोल सकते हो बोलो, हैबिट बना लो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि वो बच्चा जिसको तुमने गोद में उठाया है, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारा हीरा है, वो तुम्हें तराश के कल को तुम्हारी खिदमत करेगा। आज मेरे पेरेंट्स प्राउड करते हैं, वो प्राउड फील करते हैं, हम पास्टर शदाद हमारा बेटा है। फखर से मेरे अब्बू कहते हैं, यार तेरा मुंडा बड़ा मेहनती, उसने बड़ी स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुंचने में। पूछ लो इन बच्चों से जिन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल की है। इतनी सी थी दिया जब मेरे पास आई थी, अजहर, ये उस्मान, बस ये 3 लोग थे खास जो मेरी टीम का रुकन थे, बाकी सब छोड़ के चले गए। मैंने नहीं इधर उधर देखा, मैंने सामने देखा, और ये बच्चे मेरे साथ रहे। इतना ट्रैवल किया कि शायद कोई कम ही होगा अपनी लाइफ में जितना हमने ट्रैवल किया। हमने कश्मीर की पहाड़ियों में भी कलाम सुनाया, जाके कैंटों में भी कलाम सुनाया। लोगों ने लुंडी कोतल का नाम सुना, हमने वहां जाके भी कलाम सुनाया। कराची के हर शहर में जाके, कराची के हर टाउन में जाके कलाम सुनाया, और बाई रोड जाके सुनाया। क्या है ये नहीं वो छोड़ के चले गए मैं भी खिदमत छोड़ दूं, ऐसे नहीं। तुम अड़े और खड़े रहो, खुदा तुम्हें सरफराज करे। तुम अड़े और खड़े रहो। मैं पैसों के पीछे नहीं भागा। मैंने टेस्टमनी शेयर की आज थोड़ी सी पास्टर सुल्तान के, पर्सनल चीजें भी शेयर की, सिर्फ उसको समझाने की। मैं उसको बोल रहा था, तुम खुशकिस्मत हो, तुम लोगों को ट्रे में रख के मिली है, स्ट्रगल तो हमने कर ली हुई। देखो, अगर मर्दे खुदा, जिसको हम एलिया मर्दे खुदा बोलते हो, स्ट्रगल तो उसने की थी, अलीशा ने नहीं की थी। अलीशा को तो सिर्फ बरकत मिली है, ऐसा है कि नहीं? उसने चद्दर महंगी, ब्लेसिंग ट्रांसफर, चलो। स्ट्रगल तो मर्दे खुदा एलिया ने की। और क्या हुआ? जाते हुए चद्दर अलीशा ले या तेरी, तूने काम और किया, उसने मौजज़े किए, मिरेकल्स हुए।
नुमान कोड़ी कितना बड़ा मिरेकल, कुल्हाड़ी निकलना कितना बड़ा मिरेकल, बड़े बड़े मिरेकल है। हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। सो इसलिए आज कलीसिया के खालिस और मॉइस्चर किए हुए, मसा से भरपूर, ताजा ब्लेस्ड किए हुए लोग बनो। फिर हंस रही हो तुम। ब्लेस्ड किए हुए लोग बनो, और ब्लेस्ड होंगे, तुम्हारी नस्लें ब्लेस्ड होंगी, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड होंगे। जो तुम्हें बुरा कहे उसको बुरा बोलने दो। वो तुम्हारा हस्बैंड भी हो सकता है, तुम्हारी वाइफ भी हो सकती है, तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, तुम्हारा कोई भी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है जो तुम्हें बहुत कुछ कहे। तुम्हारा काम क्या है? क्या करना? दुआ करना, और देखना फिर कैसा चेंज आता है। खुदावंद तुम लोगों को बरकत दे और तुम्हें चुनी हुई कलीसिया बनाए, और तुम इसी का हिस्सा रहो, यीशु मसीह के वसीला से।